Hello students, my name is Hiral Lotia from JM English Medium School. How are you all? I hope so you all are fine. Kids, in last session what we have done? I explained the vocabulary words and meanings of chapter number 2, organs and organ systems, right? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? vocabulary words और meanings कौन सा chapter के? Chapter number 2, organs and organ system. In today's section, I am going to explain about what our body is made up of. हमारा body किससे made up है, मतलब कि हमारी body किससे बनी होती है, ये explain करूँगी. और दूसरा topic है organ system. कितनी organ system होती है? There are 7 types of organ systems in our body. Number 1, skeletal system. Number 2, muscular system. Number 3, respiratory system. Number 4, digestive system. Number 5, circulatory system. Number 6, nervous system. And number 7, excretory system. I am going to only explain these topics, okay? But before I start explaining today's topic, let me revise all the things about last session. मतलब कि हमने session 1 में क्या पढ़ा था? Vocabulary words and meanings, right? So let's revise this. First of all, vocabulary words. Number 1, organ. O-R-G-A-N, organ. Number 2, cells. C-E-L-L-S, cells. Number 3, tissue. T-I-S-S-U-E, tissue. Number 4, skeleton. S-K-E-L-E-T-A-N, skeleton. Number 5, muscular. M-U-S-C-U-L-A-R, muscular. Number 6, respiratory. R-E-S-P-I-R-A-T-O-R-Y, respiratory. Number 7, digestive. D-I-G-E-S-T-I-V-E, digestive. Number 8, circulatory. C-I-R-C-U-L-A-T-O-R-Y, circulatory. Number 9, nervous. N-E-R-V-O-U-S, nervous. Number 10, excretory. E-X-C-R-E-T-O-R-Y, excretory. Number 11, bones. B-O-N-E-S, bones. Number 12, swallow. S-W-A-L-L-O-W, swallow. Number 13, inhale. I-N-H-A-L-E, inhale. Number 14, exhale. E-X-H-A-L-E, exhale. Number 15, intestine. I-N-T-E-S-T-I-N-E, intestine. Clear? Now only we are going to read it for once, okay? Number 1, organ. Number 2, cells. Number 3, tissue. Number 4, skeleton. Number 5, muscular. Number 6, respiratory. Number 7, digestive. Number 8, circulatory. Number 9, nervous. Number 10, excretory. Number 11, bones. Number 12, swallow. Number 13, inhale. Number 14, exhale. Number 15, intestine. Now let's begin meanings. Number 1, tissue. A collection of cells that form the different parts of human beings, animals and plants. टिश्यू क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है. सेल्स का कलेक्शन होता है जो हमारे होल बॉडी, मतलब कि पूरे के पूरे बॉडी में होता है, राइट? वो हम ह्यूमन बींग्स में भी टिश्यूज होते हैं, इवन एनिमल्स में भी टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं. क्लियर? नाउ नंबर 2, ऑर्गन. A part of the body that has a particular purpose, such as the heart or the brain. Organ क्या है? ये हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जो अलग अलग डिफरेंट पर्पज से वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है, हार्ट है. क्लियर? नाउ 3, cells. The human body made up of thousands of tiny parts called cells.
हमारी ह्यूमन बॉडी टाइनी पार्ट से पूरी की पूरी बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। क्लियर? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि व्हेन वी आर फॉलिंग डाउन एट द टाइम वी आर इंजर्ड, लाइक हमें ब्लड नहीं निकलता है बट हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, मतलब लागी क्यों है, इसका मतलब कि हमारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 4, ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मतलब हार्ट जो हमारा पंप होता है वो एक ट्यूब से पंप होता है, तो सारे के साथ ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं किड्स? ब्लड वेसल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, डाइजेशन। The breaking down of food into a simpler form to provide energy is called digestion. हम कोई भी फूड खाते हैं जो हमारे स्टमक में जाता है ब्रेक डाउन होके, जिससे हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। क्लियर? So here we completed revision of session 1. Now let's begin session number 2. मतलब today's first topic is what our body is made up of. हमारी बॉडी किससे बनी है? The human body consists of many parts that perform different actions. Special systems inside the body help these parts to do their work. मतलब हमारी बॉडी वो अलग अलग थिंग्स परफॉर्म करती है, राइट? हार्ट है जो पंप का काम करता है, स्टमक है वो डाइजेशन का काम करता है, लंग्स है वो ब्रीदिंग का काम करते हैं, राइट? तो लंग्स है तो सिर्फ वो ब्रीदिंग का काम किसकी हेल्प से करते हैं? मतलब विंड पाइप है, नोज है, मतलब उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। फिर अंदर है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। मतलब अलग अलग सिस्टम्स होती है, वो अलग अलग पर्टिकुलर सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है, राइट? तो हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट सिस्टम्स, राइट? तो ये चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म करती है, राइट? बट सबके नेम्स भी अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, like skeletal system, muscular system, respiratory system, excretory system, right? तो उन सारे के वर्क भी अलग है, उसकी प्रोसेस भी अलग है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीदिंग का काम करती है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम है मतलब वो मसल्स होती है उसका वर्क करती है, राइट? तो सभी अलग अलग सिस्टम्स होती है, उसके अलग अलग उसकी वर्क प्रोसेस होती है। क्लियर? What our body is made up of. हमारी बॉडी किससे बनी होती है? The human body made up of thousands of tiny parts called cells. मैंने आपको vocabulary words में भी बोला कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो thousands of cells से बनी होती है। मतलब कि हमारे बॉडी में क्या होता है? It is full of cells. Clear? Many cells together make a tissue. मतलब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, उसके बाद क्या बनती है हमारी बॉडी में? टिश्यू फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? टिश्यू फॉर्म हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है? सेल्स होते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, उसके बाद कौन सा लेयर बन जाता है? टिश्यू का लेयर बन जाता है। यहाँ पे आपको इमेज क्लियर है ना, दिखाई दे रही है ना सबको? डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर मेक एन ऑर्गन। भी सेल्स में से क्या बना? टिश्यूज बने। ये सारे के सारे टिश्यूज को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेंगे? ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। क्लियर? फिर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क टुगेदर, मतलब दे आर वर्किंग टुगेदर, इसको इकट्ठा करके बनेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा किड्स? ऑर्गन सिस्टम। पहले सेल्स है, सेल्स को बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा? टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज एक साथ ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन्स बनेंगे। सारे के सारे ऑर्गन्स को मिला के क्या बनती है हमारे बॉडी में? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनती है? ऑर्गन सिस्टम। और लास्ट में आपको एक बेबी दिखाई दे रही है, एक गर्ल दिखाई दे रही है, राइट? वो क्या है? वो है ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सारी चीज को इकट्ठा करके हमारा बॉडी बनता है। क्लियर किड्स? आई
होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, सारे के सारे सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज को इकट्ठा होंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, और सारे के सारे ऑर्गन्स को मिला के जो सिस्टम बनने वाली है उसको क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। अगर ये ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम चलेगी तो हम क्या है, ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, ये एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। नाउ ऑर्गन सिस्टम, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर। सबसे नंबर 1 स्केलेटल सिस्टम, नंबर 2 मस्कुलर सिस्टम, नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 5 सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 6 nervous system, and number 7 excretory system. Kids, these are the different organ system. In another session में, एक सेशन में तो मैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको इनकी प्रॉपर एक एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बाकी हम सारी की सारी सिस्टम डेप्थ में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। ओके, तो पहली वाली है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो होती है ना, वो किससे बनी होती है, बोन्स से बनी होती है। There are 206 bones in the human body. मतलब स्केलेटल सिस्टम मतलब पूरी की पूरी हमारी बॉडी किससे बनी होती है, बोन्स से बनी होती है। किससे बनी होती है किड्स, बोन्स से बनी होती है। और हमारी बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 206, 206। There are 206 bones in the human body. क्लियर। फिर नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। The muscular system is made up of muscles that are attached to the bones. Bones के साथ हमारे muscles attach होते हैं, वो है कि नहीं, टच करिए, सारे के सारे muscles होते हैं हमारी बॉडी में, यहाँ पे और सब जगह पे। तो ये क्या है कि bones के साथ हमारे muscles attach होते हैं। There are about 600 muscles in the human body. हमारी human body में total 600 muscles है। कितने muscles है, 600। If suppose kids I am going to ask you a question, write down a number of bones in the human body, then our answer must be 206. Write down how many muscles are there in our body, then our answer must be 600. Don't get confused between skeletal system and muscular system. स्केलेटल सिस्टम में बोन्स कितने होते हैं, 206, और मस्कुलर सिस्टम में मसल्स कितने होते हैं, 600। प्लीज उसको मैशअप नहीं करोगे आप लोग। ओके, फिर थर्ड सिस्टम है आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। मतलब कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन सी चीज़ों से जुड़ी होती है, एक तो नोज, विंड पाइप और लंग्स, जिससे क्या करते हैं हम इजीली ब्रीथ को इन कर सकते हैं, ब्रीथ को आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, वहाँ पे अमिताभ बच्चन ने बोला है कि व्हेन वी आर टॉकिंग, हम जब बातें करते हैं तब हम एयर को इनहेल भी नहीं कर पाते और एक्सेल भी नहीं कर पाते, मतलब हमारी प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती है। बट आप एक बार ट्राई करके देख लो, व्हेन एवर यू आर टॉकिंग, मतलब आपकी ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम तो चालू ही होती है। क्लियर किड्स। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है ना, वो टोटली किससे कनेक्टेड होती है, माउथ से कनेक्टेड। कुछ भी खाना हम खाने वाले, वो कहाँ पे जाने वाला है, स्टमक में जाने वाला है। तो हम खाना कहाँ से खाने वाले, माउथ से, वहाँ से पास होके ही स्टमक में जाएगा, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज बिगिंस विद आवर माउथ, बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। क्लियर। माउथ, फिर उसके बाद फूड पाइप, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। ये सारे के सारे की प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, विंड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। मतलब यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रोसेस और एनस से खत्म होती है।
मतलब whatever food which is taken by us, मतलब वो खाना जाता है फूड पाइप से स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट होता है और लास्ट में एनएस से आवर वेस्टेज होता है फूड का वो निकल जाता है। जो डाइजेस्ट में हम खाना खाते हैं स्टमक में जाता है वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती है ना वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और लास्ट में जो वेस्ट होता है ना वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। क्लियर? दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बनी होती है? तो कि हार्ट से, ब्लड वेसल से एंड ब्लड से। हार्ट जो पंप करता है वो विद द सिस्टम इज कंटिन्यूइंग विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स क्या है कि it carries blood to the all parts of the body. The heart pumps blood through tubes called blood vessels. हमारे ब्लड पंप करता है किसके थ्रू? छोटी छोटी वेन्स, मतलब कि छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उसके थ्रू हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है। राइट? वो हमारा हार्ट पंप करता है। तो वो जो ट्यूब्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट ब्लड वेसल्स। हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स बोलेंगे। फिर मतलब कि समझ में आया ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये सारे के सारे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? देन नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। The nervous system is made up of the brain, spinal cord और हमारे पूरे के पूरे बॉडी की नर्व्स। इससे कौन सी सिस्टम बनती है? हमारी नर्वस सिस्टम। रिपीट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इससे कौन सी सिस्टम बनती है? हमारी नर्वस सिस्टम। मतलब कि वो हमारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम जो होती है ना वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करती है। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ मतलब मेरी एक्शंस कंट्रोल हो रही है, मैं जंप नहीं कर रही हूँ, यहाँ वहाँ नहीं देख रही हूँ, मतलब कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में। मुझे ये हाथ एक्सप्लेनेशन के टाइम में ऐसे करना है तो मैं करूँगी, ऐसा ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बॉडी में नर्वस सिस्टम है और इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now kids, you know what is excretory system? आपको पता है excretory system क्या है? The excretory system is made up of organs such as pair of kidneys. मतलब kidneys के रिगार्डिंग कोई भी सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? excretory system. But naturally kidney किसके लिए यूज होती है? तो क्या यूरिन के लिए, राइट? तो यूरिन की कोई भी हमारे बॉडी में वेस्टेज होता है, हमारे बॉडी का वाटर का वेस्टेज, फूड का वेस्टेज होगा, किडनीज में जाके हमें वॉशरूम मतलब यूरिन के थ्रू निकल जाता है। किसके थ्रू निकलता है किड्स? यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो वॉट एवर द थिंग विच इज रिगार्डिंग किडनीज वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किड्स अंडरस्टैंड? ऑर्गन सिस्टम, ये सारे की सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको ये सिर्फ सारी की सारी ओनली डेफिनेशंस बताई है। क्या बताया है मैंने आपको? ओनली डेफिनेशंस। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इन नेक्स्ट सेशन मतलब इन सेशन नंबर 3 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू skeletal system, then after muscular system and then after nervous system. ये तीन सिस्टम मैं आपको सेशन नंबर 3 में एक्सप्लेन करूँगी। ओके किड्स? क्लियर? किड्स आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विथ यू। वहाँ पे आपको सिस्टम्स के नेम लिखने और 2-3 ब्लैंक्स है वो आपको क्लियर करनी है। तो आप सेशन अच्छी तरह से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके? प्लीज ट्राई टू डू इट ऑल द थिंग्स बाय योर ओन सेल्फ। डोंट टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अगर कोई आंसर गलत है तो इट इज फाइन, एटलीस्ट आपने ट्राई तो की, फिर आप बुक को ओपन करके क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। ओके? बट डू इट बाय योर ओन सेल्फ। सो किड्स ये सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स का रिवीजन किया। फिर हमने देखा कि व्हाट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, मतलब हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स से।
फिर सेल्स इकट्ठा होकर क्या कन्वर्ट करता है, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जब साथ होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स। सारे के सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद हमारी एक ह्यूमन बॉडी मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारी बॉडी का रेडी हो जाता है। क्लियर किड्स? तो नेक्स्ट सेशन में हम ये सब कुछ करेंगे। ओके, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।